Bismillahirrahmanirrahim. So we were discussing about the VDJ recombination among the different gene segments of the light and the heavy chain involved in making the immunoglobulin molecule. इसमें जो एक important question था वो ये था कि the chance of error is there कि V gene segment may recombine with another V gene segment, or the V gene segment directly recombine with the J gene segment, for example, in case of the heavy chain gene rearrangement, instead of recombining with the D gene segment. चांस ऑफ एरर मौजूद है कि V gene segment directly J के साथ recombine हो जाए instead of recombining with the D gene segment. So in order to avoid these error and these confusions, हर gene segment के flanking sites पे recombination signal sequences attach होती है. हर recombination signal sequence दो conserved regions conserved by mean of the sequence, और in between the two conserved regions एक spacer DNA sequence होता है जो कि conserved होता है by mean of the length of the region. एक conserved region by sequence is haptomer. The second one is conserved region by mean of the sequence is the nonomer. Haptomer 7 nucleotide conserved region होता है और nonomer 9 nucleotide conserved region होता है, और in between the haptomer nonomer is conserved by length, या 23 base pair का spacer होता है या 12 base pair का spacer होता है. इस recombination signal sequence में the arrangement is such that कि जो heptameric sequence है it always face the coding side of the gene segment. If you look at this image, इसमें जो V gene segment है इसके V gene segment के exonic side coding side heptamer attach है, और toward the other end if you look J gene segment के साथ भी heptameric sequence attach है. तो recombination always happens between those gene segments which contain different spacer size. वो जीन सेगमेंट जिनका 23 बेस पेयर स्पेसर हो वो सिर्फ उन्हीं जीन सेगमेंट के साथ रिकम्बाइन होते हैं जिनमें 12 बेस पेयर का स्पेसर हो. इट्स नॉट पॉसिबल कि दो सेम स्पेसर वाले रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस कंटेनिंग जीन सेगमेंट्स वो आपस में रिकम्बाइन हो. 23 वाले 23 से रिकम्बाइन नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल in case of the heavy chain gene, the variable gene segment contain 23 base pair spacer, while the J gene segment also contain 23 base pair spacer. तो variable gene segment J के साथ variable gene segment J के साथ recombine नहीं हो सकते because both have same spacer sequences. So इसीलिए D J के साथ recombine होता है by following the 12 by 23 rule, और फिर V D के साथ रिकम्बाइन होता है by following that 12 by 23 rule. So by using this 12 by 23 rule, different gene segments आपस में रिकम्बाइन होते हैं और चांस ऑफ एरर एलिमिनेट हो जाता है, ताकि V gene segment दोबारा V gene segment से J दोबारा J से V डायरेक्टली J से रिकम्बाइन ना हो सके. इस रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जब दो डिफरेंट जीन सेगमेंट्स आपस में रिकम्बाइन होते हैं, दिस रिकॉम्बिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द RAG1 एंड द RAG2 कॉम्प्लेक्सेस, रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स. तो ये जीन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके क्लोज विसिनिटी में लेके आते हैं, और क्लोज विसिनिटी में ले आने के बाद इन एक्सॉनिक सीक्वेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. लेकिन और जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस रिमूव हो जाता है इन अ सर्कुलर शेप. तो दो किस्म के जॉइंट बनते हैं. एक वो जॉइंट बनता है जो इन दो एक्सॉनिक सीक्वेंसेस के दरमियान बने, और एक वो जॉइंट बनता है जो इस नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग डीएनए सीक्वेंस या इंट्रॉनिक डीएनए सीक्वेंस को आपस में ज्वाइन करके एक सर्कुलर शेप मॉलिक्यूल बनने की फॉर्म में एक जॉइंट बनता है. तो नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग डीएनए सीक्वेंस में जो जॉइंट बनता है इसको सिग्नल जॉइंट, और जो दो कोडिंग सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करने से जो जॉइंट बनता है उसको कोडिंग जॉइंट बोलते हैं. दो किस्म के जॉइंट बनते हैं. लेकिन इसमें जो कोडिंग जॉइंट है, कोडिंग जॉइंट राइट अवे नहीं बनता.
बल्कि जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं इनमें इनिशियली एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ये रैग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं, जबकि सिग्नल जॉइंट के वक्त इनको मुकम्मल तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं। और जब ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर पहले डिज़ोल्व होता है तो बिफोर जॉइनिंग दीज टू डिफरेंट जीन सेगमेंट्स इनके दरमियान में कुछ नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये आपस में जॉइन अप हो जाता है। तो कोडिंग जॉइंट बनता है बिटवीन द टू एक्सोनिक सेगमेंट्स ऑफ द जीन सेगमेंट्स, और इन बिटवीन द टू एक्सोनिक जीन सेगमेंट्स जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है वो रिमूव होते हैं इन द सर्कुलर फॉर्म, और उसमें जो जॉइंट बनते हैं उसको सिग्नल जॉइंट बोलते हैं।